Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद गौरा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं गौरा धवनलाल। Thank you, Sonu. A quick look at the headlines. Key domestic indices close at all-time highs. Sensex ends at the 63,523 mark. Nifty settles at 18,857. Global share markets trade mixed. The rupee closes at 82 rupees and 4 paise against the US dollar. And Brent hovers around $76 per barrel. प्रभु घरेलू शेयर सूचकांक आज ऐतिहासिक उच्चतम स्तरों पर हुए बंद। सेंसेक्स 63,523 पर और निफ्टी 18,857 पर बंद हुए। वैश्विक शेयर बाजारों में रुख मिला जुला रहा। रुपया डॉलर के मुकाबले 82 रुपये 4 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $76 प्रति बैरल के करीब रहा। इससे पहले कि हम शेयर बाजार की खबर लें, हम स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम में बाजार विशेषज्ञ अविनाश गोरखशकर जी का। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और अब आपसे चर्चा करने से पहले शेयर बाजार के आज के चलन पर नजर डाल लेते हैं। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज ऐतिहासिक उच्चतम स्तरों पर बंद हुए। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 195 अंक बढ़कर 63,523 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 40 अंकों की तेजी से रिकॉर्ड समापन स्तर 18,857 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार में भी तेजी का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.68% के फायदे में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.24% की वृद्धि दर्ज हुई। A detailed look at the stock market. Key domestic indices today ended at all-time closing highs. Amid mixed global cues, the Sensex at the Bombay Stock Exchange ended at 63,523, rising 195 points. The Nifty at the National Stock Exchange also settled at a record closing high of 18,857, gaining 40 points. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.68%, while the small-cap index added 0.24%. In the Sensex pack of 30 companies, shares of 13 firms appreciated while 17 fell. Power Grid was the top gainer as it climbed 3.7%, followed by HDFC and HDFC Bank, which rose 1.7% each. On the other hand, Mahindra & Mahindra declined 1.6%, ITC fell 1.3%, and IndusInd Bank slipped 0.9%. In sectoral indices at the BSE, 14 sectors logged gains, while 6 witnessed losses. Utilities and services sectors rose 1.2% each, while the power index gained 1.1%. On the other side, the metal index declined 0.9% and the FMCG sector index fell 0.5%. The overall market breadth was negative as shares of 1,706 companies advanced, while those of 1,822 declined. A total of 113 shares remained unchanged. Avinashi, what do you think were the driving factors for this incredible upsurge in the market? Because it did not start with an upsurge, the market today. Yeah, I think, today's market, the reason why we saw the Nifty as well as the Sensex moving upwards very sharply was rightly because a lot of FII liquidity has come in the markets. In fact, today's buying number has been at a record high. Almost 4,000 crores of net buying has been done. And more importantly, as everyone is aware that the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, is in US, markets are expecting some major announcements in terms of, major deals which are likely to be announced between US and India.
And I think some of the sectors which are going to be benefiting are sectors like semiconductors, defense, manufacturing. So I think the market was definitely expecting some kind of announcements and some kind of positive news flow, from the global, kind of markets. And, we have been seeing that the Prime Minister has already met several leading businessmen like the, promoter and chairman of Tesla, plus other investors in the US, which all give the market the confidence that a great amount of investment is likely to flow in India in the next 6 to 12 months. This news is definitely very good, before the general elections, which clearly gives an idea that the US market is looking at India as a very potentially large market and where, they are very keen to invest in India. Coming to, the other factors which have played out in the market is that now monsoon fears have slightly receded. In fact, yesterday in North Delhi, there was a lot of rainfall. So I think markets have now digested the fact that monsoons have got delayed, but the monsoon picture is not completely bad. So I think that was one factor which was dragging the markets earlier. And I think confirmation of rainfall in North Delhi is now clear that hopefully the monsoon now will gather momentum in the coming few weeks. And plus, the macro numbers, from all perspective looks very encouraging. India is one of the countries where the GDP growth has been the highest. Our domestic GST data has also been quite robust for previous month. And most importantly, IIP data has now shown a very strong revival. So all said and done, expectations are that inflation will also peak out in the next 3 to 4 months. And that is going to be a clear sigh of relief for the entire manufacturing sector, because if interest rates come down, I would believe that would be a key trigger for the market. So I think all these factors were played out in today's markets. And I think the markets definitely, are a buy on decline. Of course, one has to be careful at these levels because the markets have rallied also significantly, but it definitely remains no doubt. अविनाश जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, अगर आप थोड़ा सा अपना स्थान बदल लें। अविनाश जी, हम आपके साथ फिर से संपर्क स्थापित करते हैं। श्रोताओं, हमें खेद है कि थोड़ा सा कनेक्शन में हमें प्रॉब्लम थी। तो जैसा बताया हमें अभी अविनाश जी ने कि सारे जो अभी इंडिकेटर्स हैं भारतीय बाजार के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। मैक्रोज हमारे बहुत उत्साहजनक है। जो भी आंकड़े हैं जीडीपी की ग्रोथ को लेकर, चाहे वो जीएसटी की कलेक्शंस को लेकर हो, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस को लेकर हो, आईआईपी में हम पिकअप देख रहे हैं और इन्फ्लेशन कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली एक ट्रेंड एस्टैब्लिश हो गया है डब्ल्यूपीआई का भी और सीपीआई का भी। अविनाश जी हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। अविनाश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आवाज मिल रही है जी। अविनाश जी, जैसे आपने कहा कि सारे मैक्रोज बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन पर काबू आता दिखाई दे रहा है। जो भी सरकार, आरबीआई के जो भी कदम रहे, कमोडिटी की प्राइसेस इंटरनेशनल जो नीचे आई हैं और मॉनसून के फियर्स आपने कहा है वो भी कम हो गए हैं और अमेरिका से जो हमारे संबंध हैं उनको लेकर काफी एक एंटिसिपेशन है जो पीएम की विजिट है उसके बैकड्रॉप में। इस पूरे सिनेरियो में ऑलरेडी हम ऑल टाइम हाईस पर हैं। आगे क्या लगता है आपको ये रैली? जैसा आपने कहा कि कॉशियस तो रहना पड़ेगा, बीच बीच में बम्प्स आएंगे, बट आपको लगता है कि जो जेफरीज ने एक अनुमान दिया था ईयर एंड तक 1 लाख पहुंचने का सेंसेक्स का, क्या उस पर कुछ उम्मीद बांधी जा सकती है? क्या आपकी एडवाइस होगी ब्रॉडली जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए? कि सबसे बड़ी बात यूएस के जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, निवेशक है, वो भी होते हैं क्योंकि इंडिया एक ऐसा मार्केट बना है जो चाइना को भी वो समझते हैं कि बहुत ही स्टेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड मार्केट आगे साबित होने वाला है। तो इंडेक्स 1 लाख के ऊपर जाएगा नहीं जाएगा तो मुश्किल है, कितने समय में जाएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जब तक लिक्विडिटी मार्केट में मजबूत है, एफआईआईज ने काफी बड़ी मात्रा में अभी इंडिया को अपना फ्रंट लाइन मार्केट बनाया है। हर फॉल पे वो पैसा इंडिया में निवेश कर रहे हैं। दूसरी बात का भी पैसा दिखे तो करीबन 14-14.5 हजार करोड़ हर महीना मार्केट्स में एंटर होता है। लिक्विडिटी जब तक मजबूत है तब तक मुझे लग रहा है कि इंडेक्स को बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनीज जो कॉर्पोरेट्स है वो भी अच्छे नतीजे दिखा रहे हैं, बिजनेस कमेंट्रीज भी अच्छी है। तो निवेशकों को थोड़ा सा बच के तो रहना चाहिए क्योंकि हम ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन
अच्छी क्वालिटी कंपनीज पे निवेश करने का मौका अभी भी इनके पास है, अगर इनका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है. थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर आएगी, बट आई थिंक दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म. और आपको लगता है कि ये जो ब्रॉड बेस्ड है ये रैली मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हम बढ़त देख रहे हैं, लेकिन आप कैसे कंपेयर करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस को बाकी बाजार के बनस्पत? देखिए, मिड कैप में हमने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन इसलिए भी देखा है क्योंकि पहले मिड कैप शेयर्स में कुछ बाइंग इतनी आई नहीं थी, वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं फ्रंटलाइन कंपनीज को. लेकिन पिछले 3-4 महीनों में हमने देखा है कि काफी बड़े निवेशक HNIs, PMSs, फंड्स, ये अभी माइक्रो कैप और स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा लगा रहे हैं. इनफैक्ट हाल ही में मोतीलाल ओसवाल ने एक माइक्रो कैप फंड भी लॉन्च किया है, तो आप इसका भी एक अंदाजा ले सकते हो कि अभी काफी बड़े प्राइवेट सेक्टर फंड्स भी ये सेक्टर में या सेगमेंट में पैसा लगाने वाले हैं. तो मेरे ख्याल से रैली तो ब्रॉड बेस रहेगी, बट कहीं न कहीं थोड़ा सा सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है. मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या फ्रंटलाइन हो, मुझे लग रहा है कि सिलेक्टिव बेसिस पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि सारे शेयर्स बाजार में चलेंगे. तो वो बात ध्यान में रखनी. When we talk of, and you definitely, Avinashi, say that, sensible and prudent trading, knowing the financials, knowing the company you're investing is critical. And it's also a good time for people who really want to, ride the market, of course, with caution and checks and balances. At the same time, is there any particular, place that one can study or areas one can study to understand where would FIIs come in? Because without doubt, they play a huge role in the market rallies, whether it's terms of sectors or whether it is in terms of large, mid or small, as Sonu just spoke about. I think you're right in mentioning that, the FIIs are very important to maintain and, sustain the rally and the buoyancy in the markets. But I think a lot of money is coming in sectors like automotive, auto components, capital goods, real estate, cement, infrastructure. So, these are the pockets of opportunity where we are seeing that despite stock prices moving sharply, the valuations are not at bubble levels. And I think every profit booking kind of opportunity becomes an entry point for long-term investors. So I think, FIs are also obviously buying, steadily. They are also being very selective. But at the same time, I think the alpha which they will make here, considering other emerging markets or global markets, I think is something which is far going to be superior and better. And that is probably the reason markets continue to be buoyant. So it's not that earnings growth is not going to, because finally the most important driver for stock price appreciation is the earnings growth, which all analysts and market people are expecting that we should be ending with FY24 with about 17 to 18%. So to that extent, the valuations are not bubble zone, and we could definitely expect this rally to continue for some more time. So अविनाश जी, पहले कुछ वर्ष पहले FIIs का जो पैसा आता था उसको कहा जाता था कि ये हॉट मनी है और इस पर हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते. आपको लगता है कि अब जो फंडामेंटल्स है हमारी इकोनॉमी के, जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स पूरे विश्व को दिखाई दे रहे हैं, जैसा हमने IMF, वर्ल्ड बैंक को भी देखा है, उन्होंने सराहा है भारत की परफॉर्मेंस को पूरे वैश्विक अनसर्टेनिटी के एनवायरनमेंट में, ये सब देखते हुए आपको लगता है कि FIIs का जो पैसा है वो अब थोड़ा उसमें स्थायित्व आ गया है? नहीं, बिल्कुल. देखिए, आपने सही कहा कि FI का पैसा पहले हॉट नहीं माना जाता था क्योंकि वो बहुत तेजी से पैसा निकालती थी. लेकिन अभी देखिए बाजार में फ्रेश पैसा इस लेवल पे आ रहा है. ये इसका मेन कारण है कि FIIs को भी दिख रहा है कि इंडिया में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगले 3-4 सालों के लिए काफी स्ट्रांग है. स्पेशली जो मैक्रो नंबर्स अभी आ गए हैं, जिस प्रकार से अभी ट्रेड डेफिसिट का आंकड़ा कम हो चुका है, जिस प्रकार से IIP ग्रोथ का आंकड़ा बदल गया है, और प्लस जिस प्रकार से कंपनीज के परफॉर्मेंसेज आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि देखिए FI का पैसा ऑलवेज वोलेटाइल रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं. लेकिन जब अर्निंग ग्रोथ होती है, कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तभी वो डेफिनेटली अपना निवेश लंबे अरसे तक ही निवेश करते हैं. तो आई डोंट थिंक FI मनी इज गोइंग टू बी बेसिकली हॉट मनी एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म. एटलीस्ट अगले साल 2 साल के लिए तो लग नहीं रहा है कि बाजार में कोई बड़ी बिक्री आएगी, स्पेशली FIs के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ग्लोबली उनको वो रिटर्न नहीं मिल रहे. तो वो इंडियन मार्केट्स में वही रिटर्न उनको लग रहा है कि इंडियन मार्केट शायद उनको ग्लोबल मार्केट के रिटर्न से अच्छे रिटर्न देंगे. तो उसीलिए मनी का काफी ट्रांसफर हो रहा है. काफी FI यहाँ पे डॉलर रिटर्न देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले में काफी है. Avinashi, one is of course a comparison with emerging markets, but you also said that they are seeing India as a stable economy, a stable market. One criteria which we've, I think, done fairly well is facing adversity or calamity the last few years. I think we have fared well compared to other countries in the world. But what really, in your view,
is what makes India a stable economy. What are some parameters on which they judge or assess a stable economy? First of all, I think all the regulations and policies which are announced by the government are, policies which have been very long-term oriented. In fact, don't have policies which change every second year. And more importantly, the Prime Minister Modi, who has also gone to US now, has given a lot of concessions to overseas investors. In fact, foreign investment is, being attractively being called by the Prime Minister to invest in India, especially in areas like infrastructure, capital goods, automotive, building products. So basically, the country is now getting more friendlier. And, most of the action, most of the, growth capex is now going to come in the next 3 to 5 years. So this is a chance where, possibly we could see even stronger growth than even countries like China, which is going through a massive problem as of now. In fact, their economy is in a severe challenge. Recently, China, government reduced interest rates, gave some infrastructure packages to the, to the private sector there. So basically, we are now in a position to clearly say that our growth is going to be much stronger than even comparable China, which was always a strong competitor for capital in the global market. So I think net, these are the reasons the markets are very positive, and this is what actually makes India a more stable economy. Right. और आपने चाइना की बात करी, जहां पर जो इंटरेस्ट रेट में कट हुआ वो सिर्फ 0.1% का हुआ, जो एक्सपेक्टेशन से कम था, लेकिन जुलाई में शायद कोई स्टिमुलस, एक जो पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग है उसमें स्टिमुलस की आशा है. अगर हम बाकी देशों की तरफ नजर डालें, यूके, यूरोप, वहां पर कैसा आपको दिखाई दे रहा है अभी इन्फ्लेशन की सिचुएशन? क्या इन्फ्लेशन अभी वहां पर अभी भी बनी हुई है एक खतरे के रूप में, और क्या वो भारत के लिए एक चुनौती हो सकती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, चाइना में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उससे इंडिया के लिए कोई बड़ी मात्रा में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स टू चाइना कोई बड़ी मात्रा में होता नहीं है. हमारे लिए जो हमारे एक्सपोर्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है, ज्यादातर यूएस और यूरोप है. और इन्फ्लेशन को लेके हमको लग रहा है कि देखिए, जिस प्रकार से आरबीआई ने इन्फ्लेशन को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है, तो अभी तो पिछले 2 पॉलिसीज में तो इंटरेस्ट रेट का पॉज हो चुका है. होपफुली इस साल बारिश अगर अच्छी आती है, क्रूड ऑयल का प्राइस अगर कंट्रोल में रहता है, तो मेरे अनुमान से अगले 3 या 4 महीने में इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन इंडिया में पीक आउट होगा. होपफुली मेरे ख्याल से जो इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपर की लेवल थी वो शायद स्टेबल हो जाएगी. और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि हमें एक्चुअली सेकंड हाफ ऑफ जो FY24 होगा, अक्टूबर टू मार्च, उस पीरियड में शायद हमको इंटरेस्ट रेट कट भी देखने को मिले. बट ये सब मेरे ख्याल से मानसून और ओवरऑल ग्लोबली क्रूड का जो मूवमेंट है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा. बट चाइना का कोई डायरेक्ट हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी में डायरेक्टली ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है. और बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो भारतीय बैंकिंग सेक्टर की अभी कितनी मजबूती दिखाई देती है? अभी पीछे जो नेट एनपीए के फिगर्स आए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो नीचे आ गए हैं 1% तक, जो 15 ईयर लो है, और क्रेडिट ग्रोथ भी स्टेडी है. आपको लगता है कि हम जिस तरह से हमने पाश्चात्य देशों में अभी रिसेंटली बैंक क्राइसिस देखा, उसके बावजूद हम क्या ये एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारतीय बैंकिंग तंत्र मजबूत है? नहीं, बिल्कुल. देखिए, बैंकिंग में हमने देखा है कि पिछले 12-15 महीने में नॉट ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक, लेकिन सरकारी बैंक ने भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया. अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, कैनरा बैंक देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए, तो नॉट ओनली इनकी एसेट क्वालिटी अच्छी हो गई, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ 14-15% होने के कारण उनकी बैलेंस शीट भी अच्छी तरह से बढ़ी है. कॉर्पोरेट कैपेक्स बढ़ा है तो उसका भी फायदा उनको मिला है, प्लस रिटेल डिमांड अच्छा है. तो कहीं ना कहीं देखिए, सरकारी बैंक ने भी काफी पैसा टेक्नोलॉजी पे खर्चा किया है, उन्होंने एसेट क्वालिटी पे फोकस किया है. तो ये जो सिलसिला है ये आगे भी चलेगा. और मेरे ख्याल से इकोनॉमी अगर 6% के ऊपर ग्रो होती है, कॉर्पोरेट कैपेक्स बढ़ता है, तो इंडियन बैंक्स को डेफिनेटली इसका फायदा मिलना चाहिए. हालांकि अभी थोड़ा कंसोलिडेशन हम बैंकिंग सेक्टर में देख रहे हैं, लेकिन निवेश के लिए मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा सेक्टर है, क्योंकि इकोनॉमी अगर चलेगी तो बैंकिंग सेक्टर को डेफिनेटली फायदा होगा. From the banking sector, Avinashi, wanting to understand how we as Indians save in banks. We've traditionally been a country of small savers, and that's been, I think, the backbone for a lot of investment which has happened in the earlier years. Do you see this trend changing of, savings in the bank which are more liquid, being steady? Of course, interests are probably at an all-time high now with the banks offering very good ones. So 2 questions. One is, do you see this profile changing of how we are saving? And B, do you expect the rates to remain like this for long?
No, I think, see, my guess is, as I told you earlier, that most of the banks, like private sector banks and PSU banks, which have got a very strong geographical network, will continue to attract a lot of savings from depositors. And that's the reason, CASA ratios for banks like SDFC Bank, or for that reason SBI, Canara Bank, have been in the region of almost 45 to 50%. So banks will definitely benefit because of the higher saving kind of deposits in the system. But on the other hand, a lot of people are now looking at returns which are much better than, deposits returns. Right. Average returns between 4 to 5%. With the equity markets doing well, a lot of money is getting shifted to the equity market, either directly or through mutual funds. So I think some amount of shift will happen, and I think, if interest rates come down, hopefully with inflation also coming down, then I think the only way to outperform the market and outperform, the returns scenario is obviously to go for equities. Some may opt for direct equity, some may opt for mutual funds. और एक आपसे बात जानना चाहेंगे, ऑल टाइम हाइज पे है बाजार, क्या ये प्रॉफिट टेकिंग के लिए, मुनाफा वसूली के लिए अच्छा समय है? क्योंकि जब ऑल टाइम हाइज पे होता है तो एक कंफ्यूजन होता है कि आप बाजार को एंटर करें, जो एक आगे भी एक दिखाई दे रहा है भविष्य की बाजार में अच्छा एक परफॉर्मेंस रहेगा, उसको राइड करने के लिए आप बाइंग करें या प्रॉफिट टेकिंग करें जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं? सो जनरली आपकी क्या राय होगी इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी जो नया जो 52 वीक हाई पे मार्केट चल रहा है, डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी निवेशकों ने 6 महीने पहले, साल भर पहले जो निवेश किया है, उनको अच्छे रिटर्न्स मिले, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन मैं तो ये निवेशकों को कहूंगा कि देखिए, जब भी कोई भी निवेश करता है तो उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी और थोड़ा सा प्रॉफिट रेगुलरली बुक करना जरूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट अनसर्टन होता है, कभी तेजी में होता है, कभी मंदी में होता है। तो क्लियरली आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ काम करोगे तो आप रेगुलरली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना भी जरूरी है। तो हो सकता है कि बाजार 52 वीक हाई लगाने के बाद थोड़ा बहुत सेल ऑफ मोड में भी आ सकता है, बट इसका मतलब कि मार्केट बेसिकली पैनिक मोड में नहीं आए। निचले लेवल पे जरूर सपोर्ट आएगा, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, एफआई का सपोर्ट है। तो क्लियरली निवेशकों को अपना जो स्टॉक स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छी तरह से प्लान करना है। इस बाजार में सब कुछ चलेगा नहीं, ओनली सिलेक्टेड कंपनीज चलेंगे, सिलेक्टेड सेक्टर्स चलेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि 52 वीक हाई में आपको थोड़ा सा चौकन्ना तो जरूर रहना पड़ेगा। तो कौन से ऐसे सिलेक्टेड सेक्टर्स हैं जिनमें आपको अभी भी वैल्यू दिखाई दे रही है, जो ओवरबॉट नहीं है? देखिए, पहली बात तो आपको एक्सपोर्ट कंपनीज देखना चाहिए। हमारे ग्राउंड रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी एक्सपोर्ट मार्केट वापस इंप्रूव, फार्मा एक्सपोर्ट्स है, ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स है, यहाँ पे जो कंपनीज काम करती हैं वहां पे नजर रखें, क्योंकि काफी बुरी तरह से ऊपरी लेवल से यहाँ पे स्टॉक की पिटाई हो चुकी है। दूसरा जो सेक्टर है जो काफी चढ़ चुका है लेकिन अभी भी डिमांड अच्छी है, वो रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट में हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद इन्वेंट्री काफी अच्छी तरह से चल रही है। तो बड़ी जो रियल एस्टेट कंपनीज है वो 10 साल की मंदी के बाद अभी रिकवर हो चुकी है। तो रियल एस्टेट होगा, उसके बाद कैपिटल गुड्स भी होगा, उसके बाद ऑटो कंपोनेंट्स भी होगा। जो डोमेस्टिक सेक्टर्स है वहां पे तो तेजी चलेगी, बट थोड़े बहुत एक्सपोर्ट सेक्टर्स पे भी, डिफेंसिव सेक्टर्स पे भी फोकस करना चाहिए। प्लस अभी मानसून अगर अच्छा होता है तो आप एफएमसीजी सेक्टर भी देख सकते हैं, जो बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था। मानसून अगर अच्छा होता है तो सारे कंजम्पशन रिलेटेड जो कंपनीज है, जो एफएमसीजी कंपनीज प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वहां पे आपको डेफिनेटली निवेश के मौके मिलेंगे। Wanting to understand from you, Avinashji, that you had earlier said, and I will paraphrase, but for more clarity for us and for our listeners, is you had said that profit booking can happen sensibly, and the prices taken after profit booking, re-entry of the market, can be the base price for a future long-term stay? Yeah, basically what I'm trying to say is that, some investors who have entered about a year back will obviously book some money. Investors who have not entered the market should obviously look at these kind of price corrections, from a long-term perspective, because if you buy a quality business and a sustainable growth business at a reasonable price correction, okay, gives you a good entry opportunity. So I think both sides, you benefit, but obviously the guy who has invested a year back will obviously benefit more because he has invested a year back. Right. But it's still not too late for people who want to enter, but enter sensibly. Right. Exactly. Okay. So we move on to a G20 update. The third meeting of the G20 Sustainable Finance Working Group came to a close today with discussions held on capacity building at Mahabalipuram near Chennai. The two-day event had a series of discussions on handling sustainable finance, climate-aligned investments, providing timely resources for climate finance and deployment of green and low-carbon technologies. Side events were held on transition, finance, biodiversity, and issues related to sustainable development goals.
Bilateral talks also figured in the two-day event. More than 100 participants were involved in the discussions held. The evenings were marked by cultural events and traditional dinners, of course, and the delegates will be taken today for an excursion to UNESCO heritage sites at Mahabalipuram. और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। जापान का निक्केई सूचकांक 0.6% बढ़ा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.1% की मामूली वृद्धि दर्ज हुई। दूसरी तरफ हांगकांग का हैंगसेंग 2% लुढ़क गया। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.3% के नुकसान में रहा और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.9% की गिरावट पर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां हल्की मंदी का रुख था। लंदन का फुटसी, फ्रांस का कैक और जर्मनी का डैक्स सभी लगभग 0.2% की गिरावट पर थे। ब्रीफली आपको लगता है कि अन्य एशियाई बाजारों से कुछ हद तक हम डीकपल हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ग्लोबल मार्केट से हम ज्यादातर डीकपल इसलिए हो चुके हैं क्योंकि हमने देखा है कि ज्यादातर इंडियन इकोनॉमी डोमेस्टिक और जो मैक्रो फैक्टर्स है उसके ऊपर ज्यादा चलेगी। बट हाँ, अभी एक बात तो क्लियर है कि अभी भी मार्केट्स, फेड पॉलिसी, फिर यूएस मार्केट में क्या मैक्रो ग्रोथ है, मैक्रो इंडिकेटर्स है, उसके ऊपर उनका नजर जरूर होता है। बट 50% तो मैं समझता हूँ कि जो डोमेस्टिक फैक्टर्स है उनका वेटेज ज्यादा रहेगा। हालांकि मानसून है, उसके बाद इन्फ्लेशन है, ये दोनों चीजें डोमेस्टिक फैक्टर से ही ड्राइव होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप ग्लोबल फैक्टर की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल, उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट्स का सिनेरियो फेड चलाएगा, बिकॉज फेड ने भी कहा है कि वो अभी इन्फ्लेशन को मॉनिटर करेंगे। मेरे ख्याल से दोनों चीजें वर्कआउट होगी, लेकिन ज्यादातर डोमेस्टिक फैक्टर्स पे ही मार्केट ज्यादा आगे चलने की उम्मीद है। U.S. stocks today witnessed losses yesterday. The three major stocks fell as investors began the holiday-shortened week by taking profits in the wake of a sustained rally amid signs of weakening global demand. The Nasdaq Composite Index slipped 0.2%. The S&P 500 declined 0.5%, and the Dow Jones Industrial Average ended 0.7% down. Global crude oil today traded in a narrow range ahead of Federal Reserve Chair Jerome Powell's congressional testimony later in the day. In intraday trade, Brent crude was trading at $75.80 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $71.20 per barrel when reports last came in. कमोडिटीज में सोने की कीमतें आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में 30 रुपए कम होकर 58,780 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थीं। जुलाई अनुबंध वाली चांदी 235 रुपए की गिरावट से 70,155 रुपए प्रति किलो पर थी। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,946.40 प्रति आउंस पर था और चांदी भी गिरावट दर्ज करती हुई $23.35 प्रति आउंस पर थी। क्या कहेंगे आप अविनाश जी, जो गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स का अभी ट्रांच है जो फ्राइडे तक खुला है, उसमें क्या अभी निवेश करना एक अच्छा विकल्प है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिनके पास एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं है उनको गोल्ड को जरूर कंसिडर करना चाहिए। मेरे ख्याल से देखिए, गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो आपको बेसिकली एक हेज की तरह काम करता है। यहाँ पे ग्रोथ इतना इक्विटी के मुकाबले में ना हो, लेकिन अगर आपको मॉडरेट और स्टेडी रिटर्न्स की उम्मीद है और प्लस सेफ एसेट का अगर आपका विचार है तो डेफिनेटली ये जो बॉन्ड्स अभी इशू किए हैं, सॉवरेन बॉन्ड्स, यहाँ पे थोड़ा सा निवेश जरूर बनिए, लेकिन नजरिया यहाँ पे कम से कम 2-3 साल का रखिए। शॉर्ट टर्म में नहीं, बट लॉन्गर टर्म में जरूर आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देंगे। तो आपको लगता है कि लॉन्गर टर्म में जो कीमतें हैं वो ऊपर जाने का ज्यादा एक चांसेस हैं? बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि गोल्ड के प्राइसेस लॉन्गर टर्म में और भी बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन ये जो रेट ऑफ ग्रोथ होगा वो थोड़ा सा स्टेडी होगा। इसमें कोई बड़ी रैली इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में नहीं आए, लेकिन अगले 2-3 साल में मुझे लग रहा है कि गोल्ड की कीमतें अगर बढ़ती है तो डेफिनेटली ये जो सॉवरेन बॉन्ड्स है, गोल्ड बॉन्ड्स, इसमें अच्छा भी आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो इसमें डेफिनेटली 3-4 साल का अगर नजरिया किसी का है तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी, आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विभिन्न जो विकल्प हैं निवेश के उन पर अपनी राय देने के लिए। Thank you. Absolutely. Thank you, Avinash ji, for joining us today. And now, before we close, a reminder of the headlines. Key domestic indices close at all-time highs. Sensex ends at 63,523 mark. Nifty settles at 18,857. Global share markets trade mixed. Rupee closes at 82 rupees and 4 paise against the US dollar, and Brent hovers around $76 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.